ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے تذکرہ کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور امریکی سفیر کے درمیان ہونے والی ملاقات کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنچو سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی، جبکہ بلوچستان کی ترقی میں امریکی معاونت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس کا سیلاب متاثرین کے لیے امریکی امداد پر اظہار تشکر۔ میر عبدالقدوس نے کہا کہ پاکستان اور بلوچستان مالیاتی تبدیلی کی زد میں ہے، ہمیں کبھی خشک سالی تو کبھی سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ سیلاب میں شدید نقصانات ہوئے ہیں، 1,25,000 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ تعمیر نو اور بنیادی ڈھانچے کی درستگی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ حکومت بلوچستان متاثرین کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے یقین دہانی کروائی کہ امریکی حکومت تعمیر نو اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون فراہم کرے گی۔ عالمی بینک اور ڈونرز ادارے سیلاب متاثرین کی بحالی، زراعت اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنچو سے امریکی سفیر مسٹر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی۔ بلوچستان کی ترقی میں امریکی معاونت کے فروغ پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس کا سیلاب متاثرین کے لیے امریکی امداد پر اظہار تشکر۔ میر عبدالقدوس نے کہا کہ پاکستان اور بلوچستان مالیاتی تبدیلی کی زد میں ہے، ہمیں کبھی خشک سالی تو کبھی سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ حالیہ سیلاب میں شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ 1,25,000 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ تعمیر نو اور بنیادی ڈھانچے کی درستگی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ حکومت بلوچستان متاثرین کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی سفیر مسٹر ڈونلڈ بلوم نے یقین دہانی کرائی کہ امریکی حکومت تعمیر نو اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون فراہم کرے گی۔ عالمی بینک اور ڈونرز ادارے سیلاب متاثرین کی بحالی، زراعت اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ ملک اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، معاشی بحران کا سامنا ہے، ایسے میں ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاک فوج ہمارا فخر ہے، ان کے خلاف بات ملک کے خلاف بات ہے۔ نیشنل فورم کے زیر اہتمام فائر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سیمینار اور تقسیم ایوارڈ کے موقع پر مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ریاست نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کی ذمہ داری تھی، مگر صرف ریاست کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس لگن، اپنائیت کے ساتھ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو شاید ریاست کو کرنا چاہیے تھی، اور جو شخص بھی اس ملک میں، اس صوبے اور اس شہر میں وہ کام کرے گا جو ریاست کی ذمہ داری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم سب کو مل کر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ارادہ اور نیت جو ہے وہ بہت سارے کام آسان کر دیتا ہے، تو ایک اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے سوچ کے ساتھ اگر ہم آگے چلیں گے تو ہم بہت سارا اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر پاک فوج کے خلاف بات کر کے بیرونی مخالف قوتوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے جس کے بغیر ہم یا ملک کچھ نہیں۔ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ایک افواج پاکستان جس کو ہم سب بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے تھے کہ وہ حفاظت کرتے ہیں اور ہم چین کی نیند سوتے ہیں، لیکن آج جانے اور انجانے میں ہم ایسی ایک سازش کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی افواج پاکستان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر،
ये सोचे समझे बगैर कि हम अपनी सरहदों को कमजोर कर रहे हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। इस बार कराची को जियाला मेयर देंगे। फायर फाइटिंग के लिए सिंध हुकूमत ने कानून साजी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इलेक्शंस को अवॉइड कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि 4 डिवीजन में इलेक्शंस हुए जिसमें 90% से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कामयाब हुए। देखेंगे कि इस जो इलेक्शन होते हैं 15 जनवरी को, उसमें कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और इस दफा आपको इंशाल्लाह जियाला मेयर जो है वो कराची का देंगे। आपने देखा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्जा वहाब साहब, उनकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर रही। तकरीब के दौरान गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और नासिर हुसैन शाह ने फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले इदारों के नुमाइंदे को अवार्ड पेश किए। CEO नेशनल फोरम नईम कुरैशी ने कामरान खान टिसोरी और नासिर हुसैन शाह को एजाजी शील्ड्स पेश की। तकरीब में साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची सैफुर रहमान, अहमद चुनाई समेत दीगर शोबों से वाबस्ता शख्सियात भी मौजूद थीं। तो दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कराची का इलाका लियाकताबाद डाखाना कदीम तारीखी इलाका है। शहर के इस हिस्से के मकीन कारोबार से वाबस्ता हैं। लियाकताबाद डाकखाना के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लियाकताबाद डाकखाना का दौरा किया, जिसके दौरान अवाम और दुकानदारों ने उनके हमरा सेल्फियां भी बनवाईं। इस दौरान गवर्नर सिंध ने दुकानदारों और इलाका मकीनों से उनके मसाइल मालूम किए। दुकानदारों ने दरपेश मुश्किलात से गवर्नर सिंध को आगाह भी किया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने अवाम से गुफ्तगू में मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि लियाकताबाद डाकखाना कदीम तारीखी मार्केट है। शहर के इस हिस्से के मकीन कारोबार से वाबस्ता हैं। लियाकताबाद डाकखाना के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस दौरान मकीनों ने गवर्नर सिंध से मुकालमा किया कि कामरान टिसोरी अपने वादे के पक्के हैं। वादे के मुताबिक गवर्नर के ओहदे को अवाम के दरमियान लेकर जा रहे हैं। एक गवर्नर को इसी तरह अवामी होना चाहिए। दौरे के दौरान गवर्नर सिंध ने लियाकताबाद डाकखाना के मशहूर गोलगप्पे और हलीम भी खाया। सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि BRT रेड लाइन मफाद आमा का अहम प्रोजेक्ट है कि इलेक्ट्रिक की वजह से रेड लाइन प्रोजेक्ट में किसी किस्म की सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं कर सकते। महकमा ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स की वक्त पर तकमील के लिए दिन रात कोशा है। रेड लाइन प्रोजेक्ट पर मुतबादिल रास्तों को बेहतर तरीके से बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की कोई भी परेशानी न हो। सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक के इलेक्ट्रिक समेत यूटिलिटी कंपनियों के अफसरान के साथ इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, CEO ट्रांस कराची वासिफ अजलाल, के इलेक्ट्रिक के मुनीर अहमद शेख, PTCL सुई सदरन गैस कंपनी के नुमाइंदों और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से यूटिलिटीज की मुंतकली में सुस्त रवि पर सख्त बरहमी का इजहार किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अवामी मफाद के मंसूबे की तकमील के लिए के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारियां बर वक्त अदा करे। BRT रेड लाइन मफाद आमा का अहम प्रोजेक्ट है। के इलेक्ट्रिक की वजह से प्रोजेक्ट में किसी किस्म की सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूबाई वजीर ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, कमिश्नर कराची और CEO ट्रांस कराची को कल CEO के इलेक्ट्रिक के साथ इजलास करके तमाम इंस्टॉलेशन की मुंतकली के मामलात हल करने की हिदायत की है। जबकि सूबाई वजीर ने के इलेक्ट्रिक को BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के लिए के इलेक्ट्रिक की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर तैनात करने की भी हिदायत करते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर रोजाना की बुनियाद पर रेड लाइन प्रोजेक्ट कॉरिडोर से के इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की मुंतकली के काम की रफ्तार को तेज करे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची इंतजामिया को BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट कॉरिडोर में आने वाले तमाम तजावुज़ात 7 रोज़ के अंदर हटाने के भी अहकामात दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महकमा ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स के वक्त पर तकमील के लिए दिन रात कोशा है। उन्होंने ट्रांस कराची को हिदायत दी कि रेड लाइन प्रोजेक्ट पर मुतबादिल रास्तों को बेहतर तरीके से बनाया जाए ताकि शहरियों को कोई परेशानी न हो। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इस बार कराची को जियाला मेयर देंगे।
सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि दूसरे मरहले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है। कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस बार शहर कराची को जियाला मेयर देंगे। हमने कराची में जो काम किए हैं उससे शहर में बेहतरी आई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी अब तक अच्छी रही है। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हैसियत से काम जारी रखेंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि दूसरे मरहले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इस बार कराची को जियाला मेयर देंगे। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हमने शहर कराची में जो काम किए हैं उससे शहर में बेहतरी आई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी अच्छी रही। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से काम जारी रखेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पाकिस्तान की एक पहचान टेक्सटाइल की मसनूआत है। पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले कपड़े और दीगर अशिया को दुनिया भर में पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान टेक्सटाइल की मसनूआत को बैरून मुल्क बरामद करके बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के तीसरे मिनी थीसिस शो का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की एक पहचान टेक्सटाइल की मसनूआत है। पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले कपड़े और दीगर अशिया को दुनिया भर में पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बाकायदा तौर पर तालीम दे रही हैं। टेक्सटाइल के शोबे में मुल्की मसनूआत बरामद करने के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए रोज़गार भी मौजूद है। पाकिस्तान टेक्सटाइल की मसनूआत को बैरून मुल्क बरामद करके बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइनिंग ने इस शोबे में जिद्दत, वुसअत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वसी मौक़े पैदा कर दिए हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के शोबे के तलबा बासलाहियतें और जदीद रुझानात का मुकाबला करने की भी सलाहियत रखते हैं। शहर कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी के मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। आपको बताते चलें कि KDA, KMC, DMC और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुजाहिद कॉलोनी में ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इंसदादे तजावुज़ात के अमले ने बड़े पैमाने पर मुतादिद मकानात, दुकानें और दीगर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतासरीन कार्रवाई से नाला है, कहते हैं हमारा सब कुछ तबाह हो गया। रातों रात सड़कों पर आ गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुदारा हमारी मदद की जाए। नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी की खूबसूरत पुख्ता इमारतों को दूसरे मरहले में मलबे का ढेर बनाने का आगाज हो गया। कहीं हैवी मशीनरी के जरिए बुलंद इमारतें गिराई जा रही थी तो कहीं दीवारों पर हथौड़े चलाए जा रहे थे। मुतासिरीन मायूसी की हालत में बरसों में तिनका तिनका करके बनाए गए आशियाने को उजड़ता देख रहे थे। कोई प्लम्बर था, कोई कलेजी का ठेला लगाता था। गर्ज मजदूर पेशा मुतासिरीन की शदीद कर्ब की कैफियत से गुजरते नजर आए। मुतासिरीन का कहना था हम 70 सालों से आबाद हैं, रातों रात जमीन पर पहुंचा दिया गया। ये हम लोग इधर ही पैदा है, हमारी पैदाइश इसी इलाके की है, इसी घर की है। 70 साल हो गए इस घर को। गवर्नमेंट पहले काटी, अब गवर्नमेंट आई है। जाउद्दीन क्या नाले पे नहीं बना हुआ क्या? ये बोलते हैं निकल जाओ, ये प्लाजे तोड़ो, आप लोगों को पता लगे। कमेटियां डाल के 1-1 रुपया जमा करके ये बनाया था। और अभी भी देख लो, नीचे आरसीसी है, नीचे प्लास्टर है, ऊपर प्लास्टर नहीं है। आधा कर्जा हमने दिया हुआ है, आधा फिर बकाया मिसाल के तौर पर। हमने कर्जा उठा के ये एक पैसा जमा करके मकान बनाया था। नहीं हमको कुछ पैसा दे रहे हैं, नहीं कुछ जगह दे रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। एक मशीन बेच दी और लगा दी, तोड़ना शुरू कर दिया। अगर मुजाहिद कॉलोनी और उससे मुतसल आबादी में कई मंजिला इमारतें 50 साल से ज्यादा अरसे से तामीर की जा रही थी, गैर कानूनी थी, तो इनकी तामीर को क्यों नहीं रोका गया?
और अब भी गैर कानूनी इमारतों का जाल बिछाया जा रहा है। इन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा, सवालिया निशान है। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है। मुजाहिद कॉलोनी की कदीम आबादी को एक शख्स डॉक्टर आसिम की ईमा पर मिसमार करना कहाँ का इंसाफ है। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाहिद सैयद का सिंध हुकूमत से सवाल। कहा कि पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में मलीर औरंगी और मंगोपीर की सरकारी जमीनों पर धड़ाधड़ कब्जे हो रहे हैं। सिंध हुकूमत अगर कराची शहर से मुखलिस होती तो कराची के पार्क्स और दीगर रफाई प्लॉट्स को कब्जा माफिया से बागुजार करवाती। शाहिद सैयद ने कहा कि मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस के जरिए बापर्दा खवातीन पर तशद्दुद करना इंतहाई शर्मनाक अमल है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आज कराची के शहरियों पर उतना ही जुल्म करे जितना वो कल खुद बर्दाश्त कर सके। शाहिद सैयद ने आखिर में ये भी कहा कि कराची के पख्तून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस नारवा सलूक को हमेशा याद रखेंगे। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को असल हालत और नीट एंड क्लीन करने का मिशन जारी है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। ज़ैनब मार्केट और रैक्स सेंटर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं, जबकि मुतादिद ठेले, पथारे, केबिन और काउंटर्स भी जब्त करके KMC के स्टोर में जमा करवा दिए गए। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डेंगू वायरस से बचाव के लिए भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, बताएगा एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से आज कौन कौन से मकामात पर ऑपरेशन किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC इमरान राजपूत की निगरानी के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशन किए गए थे। ये एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन था, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ज़ैनब मार्केट है, रेक्स है, जहाँ मार्केटें हैं, फुटपाथों पर जो है पथारे लगाए हुए हैं और दुकानों से आगे जो सामान रख दिया जाता है, वहाँ जो सामान जो ना सिर्फ जो है वहाँ तजावुजात जो पथारे की शक्ल में थी, जो उनको जो है रखा सामान जो है कब्जे में ले लिया गया। इसके अलावा वहाँ पर जो ठेले खड़े होते थे, ठेले को भी जब्त कर लिया गया। इसके अलावा जो दुकानों ने सामान बाहर रखा हुआ था, उनको ये कहा गया है कि दुकानों में सामान अंदर रखे, काउंटर अंदर करके रखे हैं। तो ये कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल अनान भुट्टो भी जो है निगरानी में शरीक थे। उसके साथ साथ डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट साउथ जैन मलिक जो है ये कार्रवाई कर रहे थे। इलाका पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। इसके साथ जैसे कि डेंगू वायरस के हवाले से भी एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गुलबर्ग के इलाके के अंदर जो हम देखते हैं नर्सरी होती है या पंक्चर शॉप होती है, वहाँ पर पानी जो है गंदा पानी होता है, गंदे पानी को जो है बार बार उनको फेंक कर जो है साफ करके साफ पानी रखने की हिदायत की गई। इसी तरह मुख्तलिफ स्विमिंग पूल का भी जो है वहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई हैं कि मुख्तलिफ स्विमिंग पूल को ये कहा गया है कि कई रोज पानी नहीं जो तब्दील किया जाता है उसको तब्दील किया जाए। तो यूँ एंटी इंक्रोचमेंट के ये जिले सतह पर कार्रवाइयाँ थी डेंगू के हवाले से और एंटी इंक्रोचमेंट की तजावुजात के हवाले से। लेकिन जैसा कि बड़ा ऑपरेशन जो कि नॉर्थ नाजिमाबाद में मुजाहिद कॉलोनी में चल रहा है, जिसमें KDA भी होता है, DFC भी होती है, उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई के अंदर जो KMC हिस्सा ले रही होती है। तो डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कामरान अलवी जो है उनके साथ दीगर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर इस कार्रवाई में आज भी हिस्सा ले रहे थे। अच्छा, ये तीसरा जो मरहला है वो शुरू हो गया। तीसरा स्पेल ये मुजाहिद कॉलोनी का शुरू हो गया ऑपरेशन के लिए, जो कि आज से हुआ था। तो यहाँ हम जो कतार में देख रहे हैं तकरीबन 2-3 मंजिला इमारतें हैं, जिसमें और पुख्ता इमारतें, खूबसूरत इमारतें हैं। 2 से 3 मंजिला से आगे जाते हैं तो वह 4 मंजिला तक इमारत है। यकीनन इसके लिए हेवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है, मजदूर लेबर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जहाँ ये पुलिस वगैरह कार्रवाइयों के लिए वहाँ पर मौजूद है, अगर किसी का नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो उसके लिए। लेकिन वहाँ पर हम ये देखते हैं कि सैकड़ों अफराद जो कि मुतासरीन है वो भी बेबसी की तस्वीर बने हुए अपने जो आशियाना है उसको मलबे का ढेर बनता देख रहे होते हैं। आज हम वहाँ मौजूद थे। निहायत जो दुख भरे लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी हालत भी जो है देखने के ऐसी थी कि हालत गैर होनी थी उनकी।
लेकिन जो है बड़े मायूस कुन हालात के अंदर जो अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे थे। तो मुझे मुजाहिद कॉलोनी की जो ये सूरत हाल है ही जो हम देख रहे हैं अफसोसनाक भी नजर आती है इस हवाले से कि जो 50-60 साल से जो है वहाँ लोग रह रहे हैं और जमा पूंजी जो इन्होंने जमा पूंजी से अपने यह आशियाना घर बनाए थे, तो जाहिर है उनको तबाह किया जा रहा है, लेकिन उसके कोई नईमुल बदल भी अब तक जो है देने का कुछ नहीं कहा गया है। तो इंसान मायूस है वो, तो मुतालबा उनका यही है कि उनको नईमुल बदल कम अज कम तो दिया जाए। तो इस तरह एंटी इंक्रोचमेंट के तजावुज़ात जो है डिस्ट्रिक्ट जिला सतह पर जो रोजाना की जा रही हैं वो आज भी जारी है। जी अच्छा, हफीज अंसारी, ये बताइएगा कि मुतबादिल के बारे में क्या कहा जा रहा है? मुतबादिल के सूरत में दिया जाएगा, चेक्स की सूरत में दिया जाएगा, या आया वो जमीन की सूरत में दिया जाएगा? देखिए, जो इससे पहले जो बड़े ऑपरेशन किए गए थे, कुछ नालाओं में अहमदाबाद नाला हो या औरंगी नाला हो, यहाँ के लिए जो है यहाँ चेक दिए गए थे। हर यानी कि जो घर का उस घर का एक पद को चेक दिए गए थे। तो लेकिन यहाँ जो है अब तक ना चेक के हवाले से ना मुतबादिल जगह के हवाले से किसी किस्म का जो है ऐलान नहीं किया गया है, ना ही यकीन दहानी की गई है। बल्कि यहाँ तो ये बात सामने में आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि जगह ही गैर कानूनी थी, तो गैर कानूनी जगह पर जो इतने साल से ये रह रहे थे, ये इनका बहुत बड़ा फायदा है। तो यकीनन उस फायदे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि आज के इस दौर के अंदर जो सूरत हाल है, खाने पीने के लाले, रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। हमने जो अक्सर लोगों को वहाँ पर देखा, कोई ये बता रहा था कि वो कलेजे का ठिया लगाता है, गली गली फेरियाँ लगाता है, कोई प्लम्बर है, कोई मजदूर है, कोई कहीं प्राइवेट जॉब करता है 30-35 हज़ार की। तो इस तरह जो है 4 भाई है, 4 भाइयों ने मिलकर एक घर बनाया था, 3-3 मंजिलें, एक फ्लोर के ऊपर एक फैमिली रह रही है। तो एक घर के अंदर हमने देखा 5-5 फैमिलीज रह रही हैं। 5-5 फैमिली से मुराद ये है कि 25-30 अफराद एक घर के अंदर रह रहे हैं। तो यूँ एक घर के अंदर एक बड़ा खानदान जो है इस वक्त बेघर हो रहा है, और बेघर होने के बाद जो यकीनन उनके जो रोजगार है वो भी रोजगार इस हद तक नहीं है वो किराए को अफोर्ड कर सके। तो यकीनन जो है ये काबिल तवज्जो मसला है मुजाहिद कॉलोनी का, जो इस वक्त गंभीर सूरत इख्तियार करता जा रहा है। जी हाफिज अंसारी, बरसों की मेहनत और जमा पूंजी से बनाए हुए आशियाने जिनको तोड़ा जा रहा है, इससे तो इंसानी बहरान का खदशा भी पैदा हो रहा है। देखिए, इंसानी बहरान के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमने यंगस्टर्स देखे हैं, जो आप ये देख रहे हैं कि उनके बुजुर्ग बाप हैं, उन्होंने बुजुर्ग बाप जो है बेबसी की तस्वीर तो बने, लेकिन यंगस्टर जो है जो नौजवान है और लड़के हैं, उनके अंदर हमने एक तशद्दुद का उनसर यानी कि ये देखा कि जो जज्बाती जिस अंदाज में होना है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके के जो हम कहते हैं ना कि आज क्रिमिनल्स आ रहे हैं, क्रिमिनल्स की तादाद बढ़ गई है और जो है डकैतों की तादाद बढ़ गई है। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर यकीनन जब इंसान तबाह हो जाता है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो अपनी जान हथेली पर रखकर जो है किसी गलत काम की तरफ, गलत कार्रवाई की तरफ जो है वो राग़िब हो जाता है। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल ना निकले कि ऐसे लोग जो कि हजारों की तादाद में यहाँ से निकले, उनको फिर छत भी मैसर ना आए, तो फिर वो गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाए। यकीनन जो है जहाँ वहाँ बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, खवातीन हैं, और नौजवानों की भी सैकड़ों में तादाद है। जी ठीक है, हाफिज अंसारी हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ शामिल करेंगे कुछ अदालती खबरें। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में जहांगीर पार्क केएमसी मुलाजमीन को मुतबादिल क्वार्टर्स देने से मुताल्लिक केस की समाअत की गई। जस्टिस नदीम अख्तर केएमसी की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। केएमसी की अपनी अंदरूनी हालत कौन ठीक करेगा? जवाब जमा होता है, मगर केएमसी की कानूनी टीम को पता तक नहीं। पुरानी दरखास्तों पर जवाब क्यों जमा नहीं कराया जा रहा? जजेस का इस्तफसार। केएमसी के वकील ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी है। सिंध हाई कोर्ट में जहांगीर पार्क केएमसी मुलाजमीन को मुतबादिल क्वार्टर्स देने से मुताल्लिक केस की समाअत की गई। जस्टिस नदीम अख्तर केएमसी की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। केएमसी की अपनी अंदरूनी हालत कौन ठीक करेगा? जवाब जमा होता है, मगर केएमसी की कानूनी टीम को पता तक नहीं है। पुरानी दरखास्तों पर जवाब क्यों जमा नहीं कराया जा रहा? जजेस का इस्तफसार। केएमसी के वकील ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी।
تو دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن اسکیم 35 ملیر میں قبضے سے متعلق کیس کی سماعت کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کہاں ہیں؟ جسٹس ندیم اختر کا وکیل سے استفسار۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت حیدرآباد میں مصروف ہیں، وکیل کا عدالت کو جواب۔ چیف سیکرٹری سے کہیں کہ وہ 30 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو۔ 30 نومبر تک تمام قبضے ختم کر کے رپورٹ جمع کروائیں، عدالت نے حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں شاہ لطیف ٹاؤن اسکیم 35 ملیر میں قبضے سے متعلق کیس کی سماعت کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری کہاں ہیں؟ جسٹس ندیم اختر کا وکیل سے استفسار۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت حیدرآباد میں مصروف ہیں، وکیل کا عدالت کو جواب۔ چیف سیکرٹری سے کہیں کہ وہ 30 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ 30 نومبر تک تمام قبضے ختم کر کے رپورٹ جمع کروائیں، عدالت نے حکم دے دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے یونیورسٹی روڈ کو کشمیر روڈ سے ملانے والی مرکزی سڑک کی اس وقت ابتر صورتحال ہے، جبکہ بلدیاتی اداروں کے عدم توجہی کے باعث اہم ترین شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ سیوریج کا آلودہ پانی مصروف ترین سڑک سے گزرنے والوں کا مقدر بن گیا۔ مزید تفصیلات براہ راست جان لیتے ہیں اپنے نمائندے احمد اسحاق سے۔ احمد اسحاق بتائے گا شاہراہ کی اس وقت کیسی حالت ہے؟ جو بالکل ملک پاکستان کو پالنے والا 70% سے زائد ریونیو دینے والا شہر کراچی آج تمام بنیادی سہولیات و ضروریات سے محروم ہے۔ اگر بات کر لی جائے کراچی میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو یقینی طور پر اس کی رفتار تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچرے کی مثل ہے، سسردی کی شکار ہے، لیکن اگر اس کے برعکس مسائل دیکھتے ہیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں کمی آنے کے بجائے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سن کراچی سے ایک کونے جس مقام سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہ مین کشمیر روڈ کا آغاز ہے اور یہ مین یونیورسٹی روڈ ہے جو کہ کشمیر روڈ کی جانب اس وقت بڑھ رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی نہ صرف بدترین تباہ حالی خستہ حالی سڑک کا مقدر بنی ہوئی ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلتے کٹر بہتر سیوریج بھی شاہراہ کی زینت بن کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کا جام ہونا نہ صرف معمول ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات کا ہونا بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے آئے روز کا معمول بن کر رہ گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جن کے اوقات میں یہاں پر اتنا سیوریج کا پانی نکلتا ہے، گٹر ابلتے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف کھڑا ہونا محال ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی بری طرح مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس وقت رات کا پہر ہے، جو ٹریفک کی روانی اس وقت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گنا زیادہ ہے۔ ہیوی لوڈرز یہاں پر جو کہ ہیوی گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے ہوتی ہوئی گزر رہی ہے، اس کے باوجود بھی جو کہ انتظامیہ ہے اس کی آنکھوں سے یہ سڑک اب تک کے اوجھل ہے۔ چند قدم آگے میں آپ کو بتاتے چلوں یہاں پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا مرکزی دفتر موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ ضلع شرقی اس کا مرکزی دفتر یہاں پر موجود ہے۔ اسی کے بیک سائڈ پر ہم اگر بات کریں تو ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی ان کا مرکزی دفتر موجود ہے۔ 3 بڑے بڑے دفاتر ہونے کے باوجود بھی اس سڑک کا جو کہ متعلقہ افسران ہیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہونا کئی سوالات اٹھا رہا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین جنید اسلم سے کہوں گا میرے عقب میں اگر آپ دکھا سکیں تو یہ کشمیر روڈ جانے والی مرکزی سڑک ہے اور اس وقت دیکھتے ہیں رات کا پہر ہے، اس کے باوجود بھی ٹریفک کتنا زیادہ یہاں سے ہو کر گزر رہا ہے۔ اگر دن کی بات کر لی جائے، سپیر کی بات کر لی جائے، شام کی بات کر لی جائے تو یہاں پر ٹریفک بالکل پیک ہو کر چلتا ہے۔ وجوہات یہاں پر یہی ہے کہ ابلتے گٹر ہے، بہتا سیوریج ہے، کئی فٹ یہاں پر پانی کھڑا ہے، بڑے بڑے گہرے گڑھے موجود ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اسکریپ لگایا گیا ہے، پورے سڑک پر بلیڈ لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سڑک پر جو ہے اسکریچز ہیں جس کی وجہ سے حادثات ہونا یہاں پر معمول بن کر رہ گیا ہے۔ چند قدم آگے یہاں پر کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس موجود ہے، جو کہ کے ایم سی کے افسران ہیں وہ یہاں پہ آئے روز یہاں سے گزرتے ہوں گے، لیکن اب تک کہ یہ مرکزی سڑک ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ سوالات اٹھا رہے ہیں شہر کراچی کے باسی اب، کیونکہ یہ وہی شہر کراچی کے باسی ہے جو کہ ہر شعبہ حیات زندگی ہو اس سے متعلق حسین حکومت یا وفاق ہو ان کو ٹیکس پے کرتے ہیں۔
70% से ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान को टैक्स दिया जाता है। पाकिस्तान पालता है ये शहर कराची और ये तमाम बुनियादी सहूलियात, ज़रूरियात और वसाइल से महरूम है। यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध हो या फिर शहरी इंतज़ामिया या फिर ज़िले इंतज़ामिया, अब संजीदगी के साथ इक़दाम उठाने होंगे, शहर कराची वालों के मसाइल हल करने होंगे, चूँकि इनकी बुनियादी सहूलियात इनके दहलीज तक पहुँचाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात की बात करूँ तो कराची वालों का सिर्फ यही मुतालबा है कि उनको सबसे सहूलियात फराहम कर दी जाए, रोड की जो खस्ता हाली है उसको दूर कर दिया जाए, उसी के साथ साथ घरों के अंदर जो कि नल मौजूद है उनके अंदर पानी दे दिया जाए, इसी तरीके से बिजली उनको टाइमिंग के साथ दी जाए, गैस बंद ना की जाए और सस्ती तफरी के लिए अंदरूनी इलाकों के अंदर उनको छोटे बड़े पार्क फराहम कर दिए जाए ताकि बगैर किसी दुश्वारी के उनका गुजर बसर शहर कराची के पुरफज़ा माहौल के अंदर हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एमर इसाक। शहर कराची का इलाका कोरंगी इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। संगीन महकमाना गफलत और लापरवाही ने कराची के जिला कोरंगी को उजाड़ कर रख दिया है। बल्दियाती अफसरान के अदम तवज्जुही के बायस जिला कोरंगी के फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। लांडी 36B का वाहिद फैमिली पार्क भी कचरे के डंपिंग पॉइंट की मंजर कशी करने लगा है। आपको बताएं कि गंदगी और गलाजत के ढेर और तफरीही सहूलियात के फुकदान पर आवाम नाला दिखाई देते हैं। खस्ता हाली का शिकार फैमिली पार्क नशे के आदी अफराद की पसंदीदा आमाजगाह बन गया है। नशे के आदी अफराद ने इन पार्कों में अपने डेरे जमाए हुए हैं जो कि इंतजामिया की आंखों से ओझल है। संगीन महकमाना गफलत और लापरवाही ने बल्दिया कोरंगी को उजाड़ कर रख दिया। बल्दियाती अफसरान की अदम तवज्जुही के बायस जिला कोरंगी के फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। लांडी 36B का वाहिद फैमिली पार्क भी कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। गंदगी और गलाजत के ढेर और तफरीही सहूलियात के फुकदान पर आवाम नाला दिखाई देते हैं, जबकि खस्ता हाली का शिकार फैमिली पार्क नशे के आदी अफराद के लिए पसंदीदा आमाज का बन गया है। अंधेर नगरी चौपटराज शाहराओं के बाद जिला कोरंगी के फैमिली पार्क्स भी हैं ज़बूहाली का शिकार। ये मंजर अंदरून सिंध के किसी खंडर का नहीं बल्कि लांडी 36B के वाहिद फैमिली पार्क का है, जो सस्ती तफरी पुरफज़ा माहौल फराहम करने के बजाय मकीनों में ज़हनी आजमाइश और बीमारियां फैला रहा है। 36B का वाहिद फैमिली पार्क न सिर्फ कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील है, वहीं नशे के आदी अनासिर की बेहतरीन आमाजगाह भी बन चुका है। मकीन कहते हैं कि फरियाद के लिए कहाँ जाएं, तमाम महकमे महज खाने में लगे हैं। तकरीबन 10 12 साल हो गए, तो वही सूरत हाल है। कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं तो वही हाल होगा। बच्चा बीमारी तो जाहिर सी बात है, जब कचरा होगा तो बच्चा बीमारी होगा। गली का सफाई नहीं करते तो पार्क का कहाँ सफाई करेंगे? कोई देखा वाली कुछ नहीं है, सारी चीजें खुल के गायब हो गई। यहाँ से जंगले गायब हो गए, यहाँ से सिल्क गायब हो गए, कोई देखने वाला नहीं है इसका। इसमें पानी नहीं है, इसके दो माली हैं, इसके माली भी आके कुछ नहीं करते थे, बैठे रहते थे। अब सर्विस पार्क में आप देखें, वहाँ पर कैमरा घुमाए हिरोइनची सो रहा है नशा करके। ऐसे ही लोग सारे नशा करते हैं। बच्चे कुछ खेलते हैं यहाँ पर, हीरोइन को भगा देते हैं। कोई शीशे का नशा कर रहा है, कोई हीरोइन का नशा कर रहा है, कोई चर्च कर रहा है, कोई कबाड़ा अपना जमा कर रहा है साइड पर। बस यहाँ पर पूरे दिन यही रहता है। पुलिस वाले आते हैं, किसी हीरोइन को उठा के लेके चले जाते हैं, फिर थोड़े ले दे के उनको छोड़ देते हैं। बस यही चलता रहता है। एक अरसा दराज हो गया है कि इस पार्क का यही हाल है। जरूरत इस अमर की है जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने दीगर अजला में अपनी तमाम तवज्जो मरकूज की हुई है, इसी तरह अपनी थोड़ी तवज्जो लांडी के अंदरूनी इलाकों की जानिब भी करे ताकि बुनियादी सहूलियात जरूरियात लांडी के मकीनों की दहलीज तक भी पहुँच सके। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अब रुख करेंगे शहर कायद के इलाके मलीर का, जहां मलीर 15 की सड़क खंडर का मंजर पेश करने लगी है। ये मसरूफ तरीन सड़क है जो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से सड़क इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रही है, जिसके एक ट्रैक मुकम्मल टूटने की वजह से गुजरने के लायक ही नहीं रहा, जबकि गंदे पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। यहाँ रहने और यहाँ से गुजरने वाले सख्त परेशानी से दो चार हैं। खुले मेन होल्स ना बनते हैं, ना ही उन पर ढक्कन लगते हैं, जबकि कई माह से इस अजियत से दो चार हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। मलीर 15 के मकीनों ने दुहाइयां दे दी।
ये है मलीर 15 की मसरूफ तरीन सड़क जो इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रही है। एक जानिब सड़क दरमियान से टूट जाने के बायस शहरी किनारों से गुजरने पर मजबूर है, दूसरी जानिब एक सड़क मुकम्मल टूटने की वजह से गुजरने के लायक ही नहीं रही। खुले मेन होल ना बनते हैं ना ही उन पर ढक्कन लगते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई माह से इस अजियत से दो चार हैं, कोई सुनने वाला नहीं, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। ये हाल है भाई हमारे मलीर का, आप देख सकते हैं इतना गटर का पानी है, सामने हमारा घर है, हम लोग रह नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। सुबह भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है इस गिराई से, सही है, इतना पानी यहाँ पर रुका हुआ है, पूरे रोड का बुरा हाल हुआ हुआ है। पानी ये 2 महीने हो गए ऐसे बह रहा है, तो नया रोड है बिल्कुल बेकार हो गया, टूट फूट हो गया है और दुकानदार बहुत परेशान है यहाँ पे, और लिहाजा जल्द से जल्द किया जाए ताकि दुकानदार भी आसरे रखें। मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, गिर जाते हैं लेडीज़ के साथ, सही है, कार वाले जा रहे हैं वो फंस जाते हैं, हम लोग भी परेशान आ गए। ये मेरी दुकान है, मैं भी परेशान हूँ, 3 दिन से लाइट भी नहीं है और पता नहीं कौन है हुक्मरान हमारे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। शहरियों का कहना है कि सिर्फ ये ही नहीं बल्कि जिस सड़क से गुजरो ऐसा ही मंजर पेश करती नजर आएगी। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब शहर कराची का मारूफ इलाका महमूदाबाद भी तबाही के दहाने पर है, जहां टूटी सड़कें और बेताज सीवरेज का पानी मकीनों के लिए दोहरे अजाब बन गया है। जबकि महमूदाबाद 3 नंबर की अहम तरीन शाहरा इस वक्त बदतरीन टूट फूट के बायस तबाह हो गई है। मकीनों और राहगीरों ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया है। महमूदाबाद में टूटी सड़कें और बेताज सीवरेज का पानी मकीनों के लिए अजाब बन गया। आपको बताएं कि महमूदाबाद 3 नंबर की अहम तरीन शाहरा इस वक्त बदतरीन टूट फूट के बायस तबाह हो गई है। मकीनों और राहगीरों ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया इस वक्त यहाँ देखना भी पसंद नहीं करती। हम अपनी मदद आपके तहत जो है टूटी फूटी सड़क अबूर करते हैं। सड़क पे ब्लॉक्स रख के यहाँ से सफ़र किया जा रहा है। सड़क की इस वक्त सूरत हाल अबतर है, जबकि इंतजामिया के कान पर जू नहीं रह रही है। कराची का इलाका है महमूदाबाद जो कि बेबसी की तस्वीर बना हुआ है, जहां टूटी सड़कें और बेहतर सीवरेज का पानी मकीनों के लिए अजाब बन गया है। मकीन अजाब में मुब्तला है, जबकि महमूदाबाद 3 नंबर की अहम तरीन शाहरा इस वक्त बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जबकि टूट फूट के बायस से ये शाहरा तबाह हो गई है। मकीनों और राहगीरों ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया है। मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक्शन में आ गया। आपको बताएं कि बाग़े कोरंगी सेक्टर 10 से कचरे के ढेर साफ कर दिए हैं। हफ्ता बाजार के अतराफ भी सफाई सुथराई के इकदाम कर दिए गए हैं। बाग़े कोरंगी के रिहायशियों का सफाई सुथराई के उमूर की अंजाम दही पर मेट्रो 1 न्यूज़ और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ इजहार तशक्कुर। मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक्शन में आ गया। बाग़े कोरंगी सेक्टर 10 से कचरे के ढेर साफ कर दिए गए, जबकि हफ्ता बाजार के अतराफ भी सफाई सुथराई के इकदाम कर दिए गए हैं। एक रोज कबल मेट्रो 1 न्यूज़ ने खबर नशर की थी, जिस पर अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने एक्शन ले लिया है। बाग़े कोरंगी का इलाका है सेक्टर 10, जहां कचरे के ढेर लगे हुए थे, कचरे के अंबार थे। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने एक्शन लेते हुए सेक्टर 10 से कचरे के ढेर साफ कर दिए हैं और हफ्ता बाजार के अतराफ भी सफाई सुथराई के हवाले से इकदाम कर दिए गए हैं। बाग़े कोरंगी के रिहायशियों का सफाई सुथराई के उमूर की अंजाम दही पर मेट्रो 1 न्यूज़ और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ इजहार तशक्कुर। मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का एक्शन। बाग़े कोरंगी सेक्टर 10 से कचरे के ढेर साफ कर दिए गए, जबकि हफ्ता बाजार के अतराफ भी सफाई सुथराई के इकदाम कर दिए गए हैं। बाग़े कोरंगी के रिहायशियों का सफाई सुथराई के उमूर के अंजाम दही पर मेट्रो 1 न्यूज़ और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ इजहार तशक्कुर।
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمتullah شیخ نے کہا ہے کہ موجودہ زمانے کا تقاضا ہے کہ تدریسی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام سر انجام دیے جائیں۔ نئی لائبریریوں کے کام کو بریک لگا ہوا تھا، جسے DMCs نے نئی لائبریری قائم کر کے بحال کر دیا ہے۔ تدریسی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈائریکٹر لائبریریز تلش شکیل، ڈائریکٹرز توقیر عباس، جام رضوان اور ایگزیکٹو انجینئر B&R سید جمال کے ہمراہ حسین ہزارہ گوٹ میں 9 تعمیر شدہ لائبریری کے معائنے کے دوران رحمتullah شیخ نے لائبریری میں موجود قارئین سے بات چیت کرتے ہوئے سہولیات سے متعلق دریافت کیا، جس پر قارئین نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے منتظر تھے کہ ان کے علاقے میں لائبریری قائم ہو۔ لائبریری کے قیام کے بعد علاقہ مکینوں کو بڑی سہولت میسر آئی ہے۔ عوام سے گفتگو میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمتullah شیخ نے کہا ہے کہ مذکورہ علاقے میں لائبریری کے ساتھ اوپر کی منزل میں جسمانی صحت بہتر بنانے کے لیے ہیلتھ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جبکہ کوشش کر رہے ہیں کہ تدریسی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے جتنے زیادہ کام کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں۔ جہاں جہاں یہ کام ہو رہے ہیں وہاں مکینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خاص خیال رکھیں اور خیال رکھنے کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ بھی حاصل کریں۔ دورے کے دوران انہوں نے موجود افسران کو لائبریری اور ہیلتھ سینٹر کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی جاری کیں۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ ہمارا آنے والا کل نونہال اور نوجوانوں سے ہے۔ نئی نسل کے لیے ہمیں ہر سطح پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ ملک و صوبے کا مستقبل محفوظ اور تابناک بنانے کے لیے نوجوان نسل کو دور جدید کی تمام سہولیات پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مختلف اسپورٹس کلبز میں کٹ اور دیگر سامان تقسیم کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا کہ بنیادی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اہل علاقہ کے دیگر مسائل کو بھی حل کرانے کی کاوش بدستور کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی سرگرمیوں کی سرپرستی ہمیشہ ہمارے ادارے نے کی ہے۔ اس روایت کو مستقبل میں بھی مزید تقویت کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حدود میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال کے کھیل کو خاص مقام حاصل ہے۔ معاشی تنگی کے سبب نوجوان اس سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کے تحت ان کی معاونت بھی کر رہے ہیں، جس کے لیے بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے۔ نوجوانوں کو دستیاب وسائل سے سہولیات کی فراہمی ہمارا مشن اور فرض ہے، جس پر ہم سختی سے عمل پیرا ہیں۔ نور حسن جوکیوں کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ہمارے ادارے نے ہمیشہ مثالی اقدامات کیے ہیں۔ نصابی یا غیر نصابی کی تفریق کیے بغیر ہم نے ہر سرگرمی کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ اس میں بھرپور تعاون بھی ادا کیا، جس کی بدولت زرخیز مٹی سے اٹھنے والے سینکڑوں نوجوانوں نے ملکی اور غیر ملکی سطح پر وطن عزیز کا نام روشن کیا ہے، جو ہمارے لیے باعث اعزاز بھی ہے۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نبیل بلوچ، PS سرفراز کھتری، ڈیپٹی رزاق بلوچ بھی موجود تھے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ اعلیٰ کماڑی صالح احمد بھٹو کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کماڑی کی عوام کو ایک عظیم تحفہ ملا۔ یہاں کے لوگ پر فضا ماحول میں اپنے علاقے میں اچھی تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ بکرا پیڑی لیاری ندری کے اطراف میں قائم کیے جانے والے نسیم آبادی پارک کا معائنہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ اعلیٰ کماڑی صالح احمد بھٹو نے کہا کہ نسیم آبادی پارک ڈسٹرکٹ کماڑی کی عوام کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہاں کے لوگ پر فضا ماحول میں اپنے علاقے میں اچھی تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا پارک ہوگا جس کو ایک فارسٹ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک سولر سسٹم لگایا گیا ہے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کو کسی حد تک کم کرے گا۔ عوام کو تفریحی سہولت فراہم کرتے ہوئے صاف و شفاف پانی RO پلانٹ کے ذریعے مہیا کیا جائے گا۔ میونسپل کمشنر نے ڈائریکٹر پارک فہد عباسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ پارک آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک شناخت ثابت ہوگا اور اس پارک کے رکے ہوئے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پارک نے میونسپل کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہاں
یہاں خود ساختہ بکرا پیڑھی قائم تھی جو نوجوان مختلف قسم کے منشیات استعمال کر رہے تھے اور اپنی زندگی برباد کر رہے تھے، اس پر ایک اچھی تفریح قائم کر کے ایک مہذب معاشرہ تشکیل کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈائریکٹر پارک نے میونسپل کمشنر کو باقی ماندہ کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ شہر کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں جاری ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہیں، جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خراب سڑکوں سے گزر کر جانا اب ملیر والوں کا مقدر بن گیا ہے۔ یہ ہے کراچی کا علاقہ ملیر سعود آباد۔ ترقیاتی کاموں کے نام پر پورا ہی علاقہ کھود دیا گیا ہے۔ ایک طرف کی سڑک کئی عرصے سے ترقیاتی کاموں کے نام پر بند ہے، ایک سڑک سے گزر کر شہری اپنے گھروں پر جانے پر مجبور ہیں۔ کچھ ایسے ہی مناظر ملیر سعود آباد قبرستان کے اطراف میں بھی نظر آتے ہیں، جہاں پر دھول مٹی سے بھری سڑکیں عوام کو خوش آمدید کرتی نظر آتی ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ علاقے کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے۔ بھاجن روڈ کے بارے میں کہہ جائیں گے، روڈ بہت بری حالت ہوئی ہے، یہاں کی لیڈیز آتی ہے، گرتے ہیں بچے گر جاتے ہیں، رکشے آئے دن کلٹی ہوتے رہتے ہیں، یہاں پہ مسجد ہے، قبرستان ہے، سب چیزیں بہت پریشانی ہو رہی ہے، گھروں کے اندر دھول مٹی بہت جاتی ہے، بیٹھنا پریشان ہے، پانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ 2-2.5 سال سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے سارا نا، ملیر 15 سے لے کے اور اپنا سعود آباد تک، تو اس پہ اتنی گرد مٹی اڑتی ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم بھی دکاندار ہیں اسی روڈ کے نا، سارا دن مٹی ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی گٹر لائن ڈالی تھی، وہ گٹر والوں نے بھی سارے گڈھے چھوڑ دیے۔ مزید اس کے اندر لوگ گاڑی پہ، بائک والے صبح ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں، وہ گرتے ہیں، لیڈیز بچے۔ پانی کی لائنیں یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہیں، آئے دن یہاں پر نا ایک دن بیچ کر کے پانی کھولا جاتا ہے، اور پانی جو ہے نا اتنا بری طرح سے بہتا ہے کہ لوگوں کے پاس اگر وہ پانی پہنچے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ روڈ اتنا خراب ہوا ہوا ہے کہ یہاں پر بیٹھنا بہت مشکل کام ہے، پورا دن مٹی اڑتی ہے، پورا دن جو ہے نا مٹی میں گرد و غبار میں جو ہے نا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ سے صرف یہی اپیل ہے کہ بھائی اس روڈ کو جلدی سے جلدی بنایا جائے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں کو کئی سال ہو گئے ہیں مگر کام مکمل ہو کر نہیں دے رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سڑکوں کو جو کہ بوسیدہ سیوریج کا نظام ہے اسے فوری ٹھیک کیا جائے اور اس کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔